Hello everyone, welcome back to Y Academy. As you know that now we are going to start the new question answer video lecture on the topic measurement of matter. This will be the first video lecture on the topic measurement of matter. Now in this topic we will learn, I will just explain you what we are going to study in this topic. The first of all there are some laws of chemical combinations. Some laws are there which are called as laws of chemical combination. Now chemical combination means when there is happening a chemical reaction, means reactants are going to react and produce some kinds of products. There is a combination of chemicals or combination of elements to form a compounds or molecules. Now how they will form, there are some laws for that. In that case there is the one law is law of conservation of mass, law of conservation of mass. This law we have already seen in the topic matter in our surrounding. Yes, in that I have explained you this law of conservation of mass. What is this? In this law, the total mass of in a chemical reaction, okay, in any chemical reaction, the total mass of reactant is always equal to total mass of product. Means there is no change in mass during a chemical reaction. This is the law of conservation of mass. Then the another example, यहाँ पे example भी लिए थे अपन ने. We have seen example of suppose carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Okay, here is reactants. Here are the reactants are carbon and oxygen, and the products are carbon dioxide. Now the atomic mass of carbon is 12, atomic mass of oxygen is here 32, and the product, this carbon dioxide has a molecular mass 44 gram, right? Now this addition of 12 plus 32 is equal to the 44 gram, and the product molecular mass is 44 gram. These molecular masses are the same. So the law that states that conservation of mass is the total mass of reactant is always equal to total mass of product. ठीक है, simple. This is the law of conservation of mass. फिर इसके बाद एक देखा था law of definite proportion. Law of definite proportion. ठीक है, अब इस लॉ के अंदर क्या था? दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन और इन अ केमिकल रिएक्शन द proportion of the given elements or the proportion of the given compounds is always fixed. मतलब क्या? देखो, अगर इस रिएक्शन को अपन देखेंगे C plus O2 gives CO2. Here the simple whole ratio for this carbon, oxygen and carbon dioxide will be here. If we multiply this by 4, 3 gram, here 8 gram and 11 gram. So if you have taken carbon dioxide from any source, if you have carbon dioxide taken from the plants or taken from the respiration which we have exhaled out the carbon dioxide, all kinds of carbon dioxide molecule contain the simple ratio of 3:8. This is definite proportion. In the carbon dioxide, the definite proportion of this carbon and oxygen is 3:8 in any kind of carbon dioxide. So this is the law of definite proportion. इस तरह के लॉ देखने हैं अपने को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देन सेकंड व्हाट वी हैव टू स्टडी इज एटॉमिक मास. नाउ ऑलरेडी यू नो ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, आपको वो एटॉमिक मासेस वगैरह मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में भी है, और चाहो तो आप एटॉमिक मासेस देख सकते हो. नाउ दिस एटम, अब इस एटम के बारे में क्या क्या है देखते हैं. इट्स शेप, its mass and valency. ये सब देखना है एटम के बारे में, एटम का शेप, एटम का मास और वैलेंसी. अब इसमें डिस्कवरी ऑफ एटम का भी अपन पॉइंट कवर कर सकते हैं. जैसे कि डिस्कवरी ऑफ एटम में अपन ने क्या क्या देखा था कि एटम की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले तो कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया था, जो जैसे कि जे थॉमसन है. जे थॉमसन वाटरमेलन मॉडल, इसके पहले स्टडी किया है. क्या होता है, जे थॉमसन साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी कि एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन and it is a spherical in nature. Spherical मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, in which there are some positive and negative charges which are equal in numbers, and he had told that atom is a neutral in nature. इस तरह के वाटरमेलन मॉडल का दिया था जे थॉमसन ने. तो उसके बाद रुदरफोर्ड ने क्या किया, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया.
राइट। रुदरफोर्ड ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंशन किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वहाँ पे उसने बताया कि एटम इज अ सर्कुलर, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, वो इसके पहले भी मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे उसके ऊपर के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। एटम हैज a nucleus at its center and revolving there are electrons around the nucleus। एटम के जो सेंटर न्यूक्लियस है, this nucleus contain protons and nucleons which are combinedly called as nucleons। Proton and neutron present in the nucleus and the electrons are revolving surrounding the nucleus in the orbits। यूदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये वाला, यहाँ पे अपने को ये पता चला था। फिर इस तरह से आगे देखिए, आगे देखा था हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने क्या बताया था कि सेंटर में अगर इस तरह से जब न्यूक्लियस का पता चला, तो ये जो फर्स्ट शेल है, इस शेल को उसने ऑर्बिट्स को नाम दिए थे। फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज के शेल, सेकेंड शेल इज कॉल्ड एज L shell, then third shell is called as M shell, then next shell is respectively called as N shell। और इन सब शेल्स की उसने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। कौन सा वाला फॉर्मूला था? 2n²। के शेल के लिए अगर फॉलो करेंगे तो के के लिए n की वैल्यू आती है 1। सो हेयर 2 into 1² इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल के लिए n की वैल्यू आती है 2। So 2 into 2 का square 4, 4 to the 8 electron। These are the electron capacities for K shell and L shell। तो ये सब अपन ने इसके पहले भी कवर किया है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर कुछ अलग तरीके से आएंगे, वो अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। ये हो गया पॉइंट शेप्स की डिस्कवरी के बारे में। मास के बारे में, एटम का मास जो है वो होता है उसके सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। और एटम के मास कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक मास। This is also called as atomic mass। Means atomic mass is, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? The summation of number of protons and number of neutrons, that is called as atomic mass। और इसके बाद का एक पॉइंट है वैलेंसी। अब इसके बारे में भी अपन ने इसको ऑलरेडी सीखा है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको वैलेंसी के बारे में सिर्फ। This valency depends upon the number of electrons an atom accept or number of electrons an atom donate during a chemical reaction or chemical combination। इसमें आप बहुत से अलग अलग एलिमेंट्स का अपन ने स्टडी किया था। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर के अगर अपन ले ले, फर्स्ट ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स का है। अल्कली मेटल्स दे आर हैविंग वैलेंसी 1। चाहे फिर आपका हाइड्रोजन एलिमेंट हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, इन सब एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो क्या है? 1 है। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? इनके आपको एटॉमिक नंबर पहले याद होने चाहिए, 1, 3, 11, 19। दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। अब ये जो एलिमेंट्स है अल्कली मेटल्स, ये एटॉमिक नंबर्स आपको कंपेयर करना पड़ेगा नोबल गैस के एटॉमिक नंबर्स के साथ। नोबल गैसेस, सिंपल ट्रिक बताता हूँ, देखो कैसे याद रखना है। नोबल गैसेस कौन से हैं? हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। एटॉमिक नंबर्स आर 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड लास्ट वाला 118 है, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर्स है नोबल गैसेस के, आपको इनके एटॉमिक नंबर के साथ इनको कंपेयर करना है। अब अगर बात करेंगे लिथियम की, तो लिथियम को अगर स्टेबल होना है तो उसके लिए नियरेस्ट एटॉमिक नंबर आएगा हेलियम वाला, जो कि 2 है। और 2 के साथ अगर उसको मैच करना है, उसको भी उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है नोबल गैसेस की तरह, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट 1 इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। सेम इन द केस ऑफ सोडियम, nearest noble gas element is neon, so he will donate 1 electron and there will be a positive charge, that is sodium। here will be potassium also has valency of 1। I hope आपको दिख रहा है। ये तो हो गई अल्कली मेटल। अब इसके बाद आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, विच इज द सेकेंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अभी उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आपके नंबर से आपको याद रखने हैं ताकि इसके साथ आप कंपेयर कर सकें। Second group is alkaline earth metals। Now this alkaline earth metals have, now this atomic number is which contain, sorry, some elements are like beryllium, then magnesium,
calcium, strontium, barium, and radium. These are the elements, right? Now, these elements contain these alkaline earth metals have valencies. So the valency is 2. Now, these alkaline earth metals having atomic numbers as 2, then 12, 20 like this. ठीक है. अब ये जो एलिमेंट्स है अगर इनकी बात करेंगे अपन तो बेरिलियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट विल बी lithium and beryllium. He will donate 2 electrons just like that of helium, and it is having valency of 2, same that of magnesium, same that of calcium. So these alkaline earth metals have valency of 2. Then after this, the group is boron, aluminium. They will donate 3 electrons, so they are having valency of 3, right? Because nearest noble gas element will be for boron that will be helium, and for aluminium that will be neon. In this way, अभी इससे बेहतर मैं आपको एक पीरियड ही लेता हूँ पीरियडिक टेबल का, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे किस तरह से वैलेंसीज जो है हाईएस्ट कहाँ तक जाते हैं और लोवेस्ट वैलेंसी क्या होती है. ठीक है. आई विल टेक द सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल. द हॉरिजॉन्टल ग्रुप लाइन्स आर कॉल्ड एज पीरियड. सेकेंड पीरियड की अगर बात करेंगे तो उसमें आते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, then carbon atomic number 6, nitrogen atomic number 7, oxygen having atomic number 8, nitrogen having atomic number 9, and fluorine having atomic number 9, and neon having atomic number 10. So these are the elements of the second period. Now this neon is a noble gas element, so it don't require any lose of electron or gain of electron, but these all elements will lose electron or some elements will gain electron to complete their octet. Now this lithium having atomic number 3, it will donate 1 electron, so its valency is 1. ठीक है, valency is 1. For beryllium its valency is 2, for boron valency is 3, for carbon its valency is 4. Now in case of carbon, they will form a covalent bond, means they will have the sharing of electrons, right? This carbon has to be difficult to donate 4 electron at a time, and he will not get at a time 4 electron to complete their octet, so they will do sharing of electrons. All the hydrocarbons or the carbon compounds are doing sharing of electron. Nitrogen valency, it will cause 3, 2, 1 and 0 valency for noble gas element. So this is the valency chart in which the highest valency is 4, and again it will decrease valency up to 0 like this. So these are the valency point. इसके पहले भी अपन ने पूरे वैलेंसीज देखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कुछ अलग से क्वेश्चन आएंगे तो अपन रिपीट यहाँ पे सॉल्व करने ही वाले. नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर मास का. मॉलिक्यूलर मासेस भी अपने को कुछ देखने हैं. मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास देखना है यहाँ पे. अब मैटर जो है ना, मैटर का पूरा जो एक फ्लो चार्ट है, मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग में पूरा समझाया था कि किस तरह से मैटर के 2 टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस. फिर प्योर सब्सटेंस के अगेन 2 टाइप, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और एलिमेंट के अगेन 3 टाइप, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड. इस तरह का अपना फ्लो चार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है वो वाला, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं. अब मॉलिक्यूल का अगर आप मास देखोगे, अब एटम के मास जो है वो अपन ने कैलकुलेट किए हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक मासेस. अब एटॉमिक मासेस जो है सबसे पहले अपन यूज करते थे रिलेटिव एटॉमिक मासेस. रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें सबसे पहले रिलेटिव मतलब कंपेयर करके. इस तरह से अपन अगर कोई सब्जी लाने जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, एक तराजू पहले यूज हुआ करता था, उसमें जो है कंपेयर करते थे. 1 किलो का अगर स्टोन है तो वो इस तरफ इस पलड़े में रखता और उतना ही वजन के जो है सब्जी अपने को देता. ठीक है, टमाटर वगैरह, मतलब 1 किलो के स्टोन से कंपेयर करता. उसी तरह एटॉमिक मासेस जो है पहले रिलेटिव निकालते थे, मतलब कंपेयर करके. सबसे पहले इसमें लिया था हाइड्रोजन एटम लिए थे, और हाइड्रोजन एटम को कंपेयर करके एटॉमिक मासेस निकाले थे दूसरे एलिमेंट्स के. बट यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं थी, इसलिए बाद में ले लिया कार्बन 12 को. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 मतलब 1/12 ऑफ कार्बन 12. इस तरह का यूज करके अपन ने एटॉमिक मासेस निकाले थे दूसरे एलिमेंट्स के. बट इसके बाद जो है यहाँ पे भी 95% ही एक्यूरेसी आ रही थी. इसके भी बाद एक कंसेप्ट निकाली AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि न्यूटन ने निकाली
एटॉमिक मास यूनिट की मदद से 99% जो है एटॉमिक मासेस करेक्ट निकाले गए। तो ये लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसके अंदर डाल्टन वाला यूनिट अपन यूज करते हैं, म्यू इसको बोलते हैं डाल्टन। इस यूनिट का यूज करके ये मेथड अपन बाद में यूज करते हैं। तो इस तरह से एटॉमिक मासेस पहले कैलकुलेट किए गए और एटॉमिक मासेस के बाद अब मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है इसके बाद मॉलिक्यूल का, जैसे कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और सपोज लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास जो है 16 है। इस तरह से एटॉमिक मासेस आपको हर एक के याद करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं एक वाटर के मॉलिक्यूल की, तो इस वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप इनके रिस्पेक्टिव एटम्स के अगर एटॉमिक मासेस को ज्वाइन करोगे या फिर समीशन करोगे, द समीशन ऑफ atomic masses of each element present in the molecule or a compound is called as molecular mass। अब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होते हैं दो, मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, दो का कितना होगा 2। अब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, यहाँ पे लिख देना आपको 16। इन दोनों का समीशन करना है, कितना आएगा 18 ग्राम। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। सिंपल है, इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल मेथड है राइट। सिर्फ आपको एटॉमिक मासेस पहले याद होने चाहिए सब एलिमेंट्स के। मैं एक बार आपको पूरे एटॉमिक मासेस 30 एलिमेंट्स तक के लिख के दूंगा आज। ठीक है, अब ये हो गया एटॉमिक मासेस। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का अभी जस्ट कैलकुलेट किया था अपन ने, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 है, एक का होता है 16, दो का 32, समीशन कर लो कितना आएगा 44 ग्राम। इस तरह से आप एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस का कैलकुलेशन अपने को स्टडी करना है। उसके बाद एटॉमिक मासेस भी हो गया। नाउ रेडिकल्स एंड आयंस। अब ये रेडिकल्स और आयंस क्या होते हैं वो देखते हैं एक बार। अगर आयन फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल्स। द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन द केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड एज रेडिकल। अब ये रेडिकल्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं कैटायनिक और दूसरे होते हैं एनायनिक। मतलब जिन रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि सोडियम है, अगर ये केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है इसको बोलेंगे कैटायनिक रेडिकल, और अगर Cl माइनस है तो इसको बोलेंगे एनायनिक रेडिकल। जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस प्लस, दिस इज कैटायनिक रेडिकल, और SO4 माइनस माइनस एनायनिक रेडिकल है। अब और अगर कुछ देखेंगे तो NH4 प्लस NH4 पॉजिटिव, दिस इज कैटायनिक रेडिकल। और अगर एनायनिक रेडिकल में बोलेंगे तो फॉस्फेट PO4 माइनस माइनस माइनस, दैट इज एनायनिक रेडिकल। H प्लस कैटायनिक रेडिकल है। और इधर एनायनिक रेडिकल में अगर और देखेंगे अपन बहुत सारे हैं, जैसे तो ऑक्सीजन माइनस माइनस एनायनिक रेडिकल है। इस तरह से रेडिकल्स अपने को स्टडी करना है। अच्छा, रेडिकल का मेन यूज कब पता लगेगा आपको पता है क्या? जब आपको बोला जाएगा कि यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ, आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाओ, तो आपको उनके वैलेंसीज, अब ये जो रेडिकल है ना सोडियम, इसकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, हेयर वैलेंसी 1, हेयर 2, यहाँ पे वैलेंसी क्या है 3, यहाँ पे 2। इस तरह से जितने चार्जेस उतनी उसकी क्या है वैलेंसी है, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, दो चार्ज है माइनस तो दो वैलेंसी हो गई। इसका यूज आपको आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने में। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे आते हैं, कि आपको एलिमेंट दिए जाते हैं और बोला जाता है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाओ, तो अपन आगे कवर करने वाले हैं किस तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूला बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, और इसके बाद आपका पूरा टोटली कैलकुलेशन वाले पार्ट है जहाँ पे आपको अलग अलग कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। कुछ आते हैं, पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं मोल कंसेप्ट, दैट कॉमनली इज कंप्लीटली कॉल्ड एज अ मोल कंसेप्ट। अब इस मोल कंसेप्ट में क्या है देखो, एक तो है एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर, साइंटिस्ट एवोगैड्रो, उसने एक नंबर यहाँ पे बताया है जो कि कैलकुलेशन में अपन यूज करते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यह है एवोगैड्रो नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने में यूज आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है आपको वो याद, उसका फॉर्मूला है, उसकी तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
आफ्टर दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मास बाय मास ये भी एक पढ़ना है। देन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम। देन देर इज अनदर कंसेप्ट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो कि मैं आपको फार्मूलाज दूंगा सबके, और कैसे सॉल्व करना है वो सब समझाऊंगा, और इसके ऊपर अपन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। उसके पहले मैं आपको कुछ 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, जो कि आई होप आपके पास होंगे, बट फिर भी एक बार, या तो मैं आपको जब क्वेश्चन जैसे आएंगे ना वैसे वहाँ पे आपको एटॉमिक मासेस बता देता हूँ उनके। ठीक है, लिख कर नहीं दूंगा, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में या गूगल पे कहीं पे भी एटॉमिक मासेस डालोगे ना तो आपको 30 एलिमेंट्स के आपको इजीली मिल जाएंगे। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब कुछ मॉलिक्यूलर मासेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि अगर अपन फर्स्ट एग्जांपल अभी जस्ट अपन ने लिया था, कौन सा वाला लिया था, कि एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर लें अपन तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास? एक हाइड्रोजन का क्या था वाटर मॉलिक्यूल, देखते हैं चलो। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, इसलिए उसका आएगा 2। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16, तो यहाँ पे लिख दो 16, टोटल 18। सो वन वाटर मॉलिक्यूल हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 ग्राम। ये आपको आगे काम में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलेज में मॉलिक्यूलर मासेस लगेंगे आपको। देन आगे चलते हैं। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अब इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास। नाउ द पोटेशियम हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 39। वन कार्बन, सॉरी, ऐसे पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, मतलब आपको 2 बार 39 लो या इसका डबल कर दो। ठीक है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और ऑक्सीजन टोटल है 3, मीन्स एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का आएगा 48। अब कर लो इनकी एडिशन, देखो कितना आता है। 19 और 9, 138 ग्राम। दिस विल बी एटॉमिक मास ऑफ K2CO3। देन नंबर 3 अगर देखेंगे, एग्जांपल है MgCl2। MgCl2 कैसे निकालेंगे? एक मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, एक क्लोरीन का होता है 35.5। दो का कितना होगा? 35 का डबल 70, और 71 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास कितना आएगा? 4 and 1 5, 95 ग्राम ऑफ MgCl2। 95 ग्राम, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl2। आगे देखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कितना है? सोडियम का आएगा 23, एक ऑक्सीजन का आएगा 16, और हाइड्रोजन का आएगा 1। टोटल दिस विल बी 40 ग्राम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 5 पे देखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और एक क्लोरीन का होता है 35.5। टोटल कितना आएगा देखो? 58.5, करेक्ट। नाउ नंबर 6, NaCl हो गया ना, Na2SO4। नाउ एक सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, दो का होगा 46, क्योंकि 2 सोडियम है यहाँ पे। एक सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन अब 4 है, एक का होता है 16, तो 4 का कितना होगा? 16 4 जा 64। टोटल 10 और 2 12, 142 ग्राम। दिस विल बी सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ तो आपको एज इट इज फिक्स याद ही रखने हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल का एक याद रखना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक याद रखना पड़ेगा, NaCl का एक याद रखना पड़ेगा,
और इसमें अभी HCl नहीं आया है, HCl का एक देखते हैं चलो। मतलब इसके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिक्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। नंबर 7 लेता हूँ मैं, HCl। HCl में क्या आएगा, सपोज हाइड्रोजन का 1 और Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5, टोटल 36.5 ग्राम HCl का हो गया। और इसी तरह H2SO4 का भी याद रखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नंबर 8 पे अगर देखेंगे तो H2SO4, हाइड्रोजन 2 है इसलिए एटॉमिक मास 2, सल्फर 2 है तो 2, सल्फर एक ही है तो उसका होता है 32, ऑक्सीजन 4 है तो होता है 64, टोटल आएगा 98 ग्राम। तो इस तरह की ये जो है ना, वाटर, HCl, H2SO4, NaOH, NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक निकालते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3। For one sodium, 23 is the atomic mass. For one hydrogen, 1 is the atomic mass. For one carbon, 12 is the atomic mass. And for 3 oxygen, 48 is the atomic mass. Now do the addition. 84 gram will be the molecular mass of sodium bicarbonate। और उसके बाद और एक दो करते हैं अपन, मतलब ये 5-6 तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक याद रखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, CO2 का क्या है 44 ग्राम। ऐसे कुछ एटॉमिक मासेस आपको फिक्स याद ही रखने हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, फटाफट आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकें। मॉलिक्यूलर मास आपको आगे फिक्स लगने ही वाला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक मासेस याद कर लो, कौन से एटम का एटॉमिक मास कितना है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। अब एक कैल्शियम का होता है 40, एक सल्फर का होता है 32 और 4 ऑक्सीजन का होगा 64, टोटल 6 10 136 ग्राम फॉर कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, फॉर 1 कैल्शियम इट इज 40 ग्राम, फॉर 2 क्लोरीन, अब एक क्लोरीन का होता है 35.5, अब 2 के लिए कितना होगा 71.0 के आसपास, तो 71 ग्राम, 111 ग्राम आएगा, ठीक है, फॉर CaCl2। इस तरह से आप और भी कई सारे एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। अगर KCl की बात करेंगे तो पोटेशियम का आता है 39 और Cl का आता है 35.5, तो 5 को 0.5, 14 3 3 6 और 1 7, 74.5। अब आप बोलोगे सर एटम का एटॉमिक, किसी भी एटम का एटॉमिक मास पॉइंट में कैसे आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये जो एटॉमिक मास जो है ना पॉइंट में, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, मतलब एवरेज है। अब क्लोरीन के जो कुछ भी आइसोटोप्स है ना, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं अलग अलग 17 18 19 वाले, तो उन सब एटॉमिक मासेस का क्या होता है, ये एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। एवरेज निकाल के आपको दिया जाता है, इसलिए उसका एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। देन CH4 का एक देख लो, CH4 बहुत ही सिंपल है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 4 हाइड्रोजन का आएगा 4, टोटल 16, राइट। देन अगेन सम मोर एग्जांपल विल बी, ठीक है, इतने सफिशिएंट है। सोडियम हाइड्राइड का भी देखेंगे तो NaH होता है उसका, NaH, फॉर 1 सोडियम इट इज 23, फॉर 1 हाइड्रोजन इट इज 1, टोटल 24 ग्राम। इस तरह के आप ये एलिमेंट्स का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालने का ट्राई घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको कुछ होमवर्क चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए आप निकाल सकते हो घर पे रहते हुए कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CCl4, कैल्शियम क्लोराइड का भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निकाल सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड का निकाल सकते हो। इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स अभी बहुत सारे हैं, मेनली इतने सारे एलिमेंट्स के ऊपर तो क्वेश्चंस आते ही हैं और आपको इसको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम में इसके लिए कुछ और दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन जो कि था कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। अभी आप 30 एलिमेंट्स तक का सबसे पहले काम करो, 30 एलिमेंट्स तक के एटॉमिक मासेस। एक काम करता हूँ मैं आपको लिख कर ही देता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस।
जिससे कि आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते वक्त कि किसका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, अप टू 30 तक का आपको लिख कर ही देता हूँ। चलिए, पहला हाइड्रोजन आता है, एटॉमिक मास है 2, देन हेलियम एटॉमिक मास 4, लिथियम एटॉमिक मास 6.9, देन बेरिलियम एटॉमिक मास 8, देन बोरॉन एटॉमिक मास 10, कार्बन एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 पॉइंट, या तो 15 भी ले सकते हो इसको आप। ठीक है, देन ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, अभी 14 पॉइंट है मतलब 15 ले लो। फिर फ्लोरीन एटॉमिक मास 19, नियॉन एटॉमिक मास 20। सिंपल एक ट्रिक भी आपको बोलता हूँ कैसे याद रखना है ये। देन एटॉमिक नंबर 11 फॉर सोडियम एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24, सोडियम मैग्नीशियम। उसके बाद आएगा हेलियम, हाइड्रोजन हेलियम, हेलियम तो चला गया उधर। लिथियम के सामने बेरिलियम, हाँ सॉरी बेरिलियम आता है, ये बेरिलियम हो गया। मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम 24, देन उसके बाद बोरॉन के नीचे वाला एल्यूमिनियम 27, देन सिलिकॉन, इट विल बी हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर है इसका 14, 14 टू द 28। ठीक है, सिंपली डबल करना है आपको। देन फॉस्फोरस 31, देन सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, देन एर्गॉन 40, potassium 39, and calcium it's having 20, सॉरी 40। ये हो गया 20। अभी स्कैंडियम, स्कैंडियम है एटॉमिक मास 45, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। टिटेनियम having atomic mass of 48, then vanadium having 51, chromium having 52, manganese having 55, iron having 56, cobalt having 59, nickel having same 59, copper having 63.5 and zinc having 65.3। इस तरह के ये 30 एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक मासेस हैं, जो कि अभी आपको ये याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको जहां कहीं भी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पूछा जाए तो आपका आपका जो क्वेश्चन है वो कवर हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, ये सब जो है इनके एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है इनका सीक्वेंस ही याद रखना। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, 2 है, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको सीक्वेंसली ही दिए हैं, ये है एटॉमिक नंबर्स। ओके, ये 1, 2, 3, 4 वाले एटॉमिक नंबर्स। इधर भी लिखता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, इस तरह से ये है एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स के अगर आपको नाम अगर बताना है तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन 11 नंबर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। 21 स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, cobalt, nickel, copper and zinc. So in this way these are the 30 elements, their atomic numbers and their atomic masses. Now in the next video lecture we will continue our question answers on further topics, on further points of the topic measurement of matter. See you in the next video.